آج ہم جو ذکر کر رہے ہیں جس ملک کا، اس کی طرف چلتے ہیں پلیز. وہ ملک ہے عراق. بہت ہی اہم ملک ہے اور اس کے بارے میں آپ کو بتانا شروع کرتے ہیں کہ دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان واقع یہ جو قدیم ملک ہے اس کا نام پہلے تھا میسوپوٹیمیا. اور میسوپوٹیمیا جو ہے وہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے دو دریاؤں کے درمیان. تو یہ دو دریاؤں کے درمیان ہے، دجلہ اور فرات کے دریاؤں کے درمیان ہے، اس وجہ سے اس کا نام میسوپوٹیمیا عراق ہے. اور عراق کو پہلی انسانی تہذیب کی آماجگاہ سمجھا جاتا ہے. فلسطین کی طرح عراق بھی انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے. روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے عراق کے شہر قرنا کو اپنا وطن بنایا تھا، اور اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے علاوہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ کرنا کے شہر کے رہنے والے تھے. کرنا کی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، وہ آپ کو بتاؤں؟ بتائیے. کرنا ایک واحد ایسا شہر ہے کہ جس کے ارد گرد 3 شہر واقع ہیں اور تینوں کا ڈسٹنس اس سے برابر کا ہے. اچھا، تینوں اس کے بڑا میتھمیٹیکلی بنایا ہے جس نے بھی اس کو بنایا، ایجاد کیا. جو پہلا وہاں پر کرنا میں جو پہلی جو ان کی جو بھی ہے جو شہر ہے وہ ہے ان کا، آپ کو نہیں پتا کون کون سے شہر؟ بڑی مشکل نام ہوتے ہیں، میں ناموں کے معاملے میں کنفیوز ہو جاتا ہوں. چلے آپ انبیاء علیہ السلام کے نام جو ہے وہ جن کے اوپر میں نے ریسرچ کی ہے وہ بتا دیتا ہوں. شہروں کے نام شہروں کے نام میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں، آپ کو مزید ڈسٹرب نہیں کرتی. میں بات کرتا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کی، کہ ایک اور بڑا مشہور واقعہ جو کہ قرآن میں بھی جس کا ذکر ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا جو اس زمانے میں جو طوفان آیا تھا وہ بھی اسی علاقے میں آیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی بھی یہیں پر بنائی تھی. پھر کرنا شہر کی خصوصیت جیسا کہ آپ نے بتائی کہ 3 شہروں سے یہ فاصلے پر ہیں، ان کے نام آپ ہمیں بتائیے گا کہ کون سے یہ شہر ہیں. اچھا، عراق کے آثار قدیمہ کی بات کرتے ہیں. یہ جو آثار قدیمہ ہے وہاں کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ زمانہ قبل از مسیح میں یہاں پر لوگ باقاعدہ تہذیب رکھتے تھے، باقاعدہ یہاں پر ان کی زبان تھی اور ان کا مذہب بھی تھا. اور عراق جو ہے وہ سمیریا، اکادی، اسیریائی، کلدانی، ساسانی اور بابل کی تہذیبوں کا مرکز رہا ہے. اتنی زیادہ یہاں پر تہذیبیں رہی ہیں اور ان سب کا امتزاج آپ کو وہاں کے آرکیٹیکچر میں بھی نظر آتا ہے. انہوں نے ہی دنیا کو لکھنا سکھایا، انہوں نے ہی ابتدائی ریاضیات جو تھیں اس پر کام کیا، فلسفے پر کام کیا، سائنسی علوم پر کام کیا، اور جتنے بھی سائنسی اصول آج ہمیں ملتے ہیں وہ یہیں سے ہمیں نظر آتے ہیں ملتے ہوئے. پھر اکادی سلطنت جو ہے وہ لبنان تک پھیلی ہوئی تھی، اور ابتدائی جو حروف تھے وہ انہی لوگوں نے بنائے تھے. پھر سمندری جو جہاز رانی ہے اس کی ابتدا ان لوگوں نے کی تھی. اور اکادیوں کے بعد پھر اسیریائی، کلدانی، ساسائی اور پھر بابل کی تہذیب نے اس علاقے میں فروغ پایا. بابل جو ہے وہ موجودہ بغداد سے کوئی تقریباً 55 میل کے فاصلے پر آباد ایک قدیم شہر تھا، اور جو کہ سلطنت تھی بابل کی سلطنت اس کا دارالحکومت تھا، اور کلدانی سلطنت جو تھی یہ اس کا بھی دارالحکومت تھا. اور توریت کے مطابق حضرت آدم بابل میں رہتے تھے. جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو آدم علیہ السلام سے ان سے ناراض ہو گئے، اور پھر اس کے بعد قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ ارض بابل پر جو پہاڑ تھے وہاں چلا گیا، اور پھر اس جگہ کا نام بابل پڑ گیا جس کے معنی ہے فرقت یا جدائی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب حضرت ادریس علیہ السلام نبی مبعوث ہوئے تو قابیل کی اولاد نے ان پہاڑوں سے نیچے اتر کر بہت زیادہ فساد برپا کیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک ایسی سرزمین عطا کرے جس میں ارض بابل کی طرح یہ جو دریا ہے وہاں بہتا ہوا وہ موجود ہو. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ارض مصر میں منتقل ہونے کا حکم دیا، اور پھر وہ مصر وہاں پر پہنچے تو وہاں کے ماحول کو زندگی کے بڑا موافق پایا. انہوں نے بہت خوشگوار ماحول تھا وہاں کا، تو وہاں پر انہوں نے بابل سے ملتا جلتا نام بیبلیون رکھا اس جگہ کا. تو وہ جو اس بیبلیون کا مطلب ہوتا ہے اچھی جدائی یا اچھی فرقت، یعنی کہ گڈ بائے جس کو ہم کہتے ہیں. گڈ بائے یا مشابہت رکھ سکتے ہیں نام کہہ سکتے ہیں، بالکل ایک ایسی جدائی ہے جو کہ اچھی جدائی ہے. بالکل. پھر ہم بات کرتے ہیں 6 صدی قبل مسیح کی. اب یہ علاقہ جو ہے اگلے 400 سال کے لیے سائرس اعظم کے پاس چلا گیا. وہاں جو سلطنت فارس تھی اس کا حصہ بن گیا. اس کے بعد سکندر اعظم نے اس علاقے کو فتح کیا، اور پھر یہ 200 سال تک یونانیوں کے زیر حکومت رہا. یونانیوں کے بعد 7ویں صدی عیسوی تک یہاں پر ایرانیوں کا بھی راج رہا. تو یہ دیکھیں کتنی الگ الگ سویلائزیشن سے جو کہ اس علاقے میں آتی ہیں. پھر 7ویں صدی عیسوی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عراق فتح کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عراق کے جو علاقہ ہے کوفہ اس کو اپنا دارالخلافہ بنایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں ہی جام شہادت نوش کیا، اور آپ کا روضہ مبارک عراق کے شہر نجف میں ہے جو کہ کوفہ سے کوئی تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. اور دنیا کا جو سب سے بڑا جو قبرستان ہے وہ بھی نجف حضرت علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بالکل قریب
यानी कि उनका जो मज़ार है उसके करीब ही वाक़ है और दुनिया का सबसे बड़ा, लोग उधर भी ज़ियारत करने जाते हैं। वहाँ पर कहा जाता है काफी वादी सलाम अंबिया उसको की भी कहते हैं, कब्रें बिल्कुल, मौजूद काफ़ी अंबिया कराम हैं, उनकी भी कब्रें मौजूद हैं और वादी सलाम उस कब्रिस्तान का नाम है। और बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है, अगर आप इंटरनेट वगैरह पर जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्रीज में बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कितना फासला है हज़रत अली के मज़ार से उस कब्रिस्तान का, लेकिन बहुत बड़ा, ह्यूज। अच्छा, ओके जी। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी मोतबर हस्तियां हैं जो कि दफन है। और फिर जब हम इराक की बात करते हैं तो करबला की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। वाक़या करबला भी इराक की ही सरजमीन पर रोनमा हुआ था जब यजीद ने अहले बैत पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे और नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके घराने को शहीद किया गया था। ये वाक़या हम सब के लिए ज़ाहिर है एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, तो इस्लाम को जो जावेदानी हैसियत है वो उस वाक़े के बाद मिली थी। अच्छा, और कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक इसी इलाके से है, जैसे फ़िक़ह हनफी के जो बानी जिनको कहा जाता है इमाम अबू हनीफा, ये कूफा में पैदा हुए थे और फिर उसके अलावा इन्होंने ज़ाहिर बहुत काम किया, इनके इल्म से आज हम सब मुस्तफ़ीद होते हैं। फिर इमाम अबू हनीफा का जो मज़ार है वो बगदाद में है। फिर उसके अलावा मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनका जो मज़ार है वो भी बगदाद में ही है। और अरब मुसलमानों ने उमवी और अब्बासी सल्तनत की सूरत में यहाँ पर हुकूमत की थी और अब्बासियों ने बगदाद को पहली मरतबा अपना दारुल हुकूमत बनाया था। और अब्बासी खलीफा जो था मंसूर अब्बासी, उसने इस शहर की बुनियाद रखी थी। हारून रशीद और मामून रशीद जैसे खुलफा जो थे वो यहाँ पर बैठकर पूरी सल्तनत चलाते थे। और इस्लामी सल्तनत का पाया तख्त होने की वजह से ये शहर हमेशा इंतहाई अहमियत का हामिल रहा। तेल के भी बड़े ज़खायर बिल्कुल पाए जाते हैं और तेल बड़े कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, और हमेशा जिन ममालिक में भी जंग का समा होता है या जिन ममालिक को भी अटैक किया जाता है, जहां पर भी इन्वेजन्स होती हैं, उसके पीछे नाजरीन ये बात माइंड में रखिए कि तेल का जखीरा कहीं होगा तो अमेरिका की नजर उस मुल्क पे होगी, हमेशा बुरी नजर होगी। तो ये इराक के साथ भी ये जो अनफॉर्चुनेट वाकया था वो हुआ कि जंग के बावजूद उन्होंने खैर अपने आप को बनाया और इराकियों के हवाले से उनकी जो मेहमान नवाजी है वो बड़ी मशहूर है। और उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि नजफ से करबला का जो फासला है वो है 85 किलोमीटर के तकरीबन दरमियान में वो फासला है। और नजफ से मशी, उस एक्सरसाइज का नाम है मशी कहा जाता है, जब नजफ से जो ज़ायरीन है वो करबला की तरफ पैदल जाते हैं। और उस पूरे 85 किलोमीटर की जो बेल्ट है उसका सफ़र करने में पैदल आपको 3 दिन लगते हैं। ज़ाहिर है अब 3 दिन आप लगातार तो चल नहीं सकते, तो आपने कहीं क़याम भी करना होगा। तो जब भी ये ज़ायरीन जाते हैं, लाखों की तादाद में ज़ायरीन जाते हैं और वहाँ के जो लोकल लोग हैं यानी कि जो इराकी वहाँ पर बसने वाले हैं उस बेल्ट के दरमियान भरपूर तरीके से वेलकम करते हैं ज़ायरीन का। वहाँ पर रहना, खाना पीना सब कुछ मुफ्त होता है और 3 दिन वहाँ पर वो सारे स्टॉल, सारे खाने पीने अवेलेबल होते हैं। और जैसे ही जहाँ पर भी कोई फैमिली कयाम करने के लिए रुकेगी, बच्चे और औरतें जो हैं वो उनकी तरफ लपकते हैं, अपने घरों से बाहर निकल आते हैं, उनका रिहाइश हर चीज़ फ्री होती है और उनकी बाकायदा पाँव दबाते हैं क्योंकि चलने का सफर है और बड़ा लंबा सफर है, आपको जाहिर है दर्द भी होता है। और इसके बाद ईरानियों ने भी इराकियों से ये चीज़ सीखी कि इस तरह से ख्याल रखा जाना चाहिए ज़ायरीन का। तो फिर ईरानी भी जो हैं, अब जब आप पाकिस्तान से ताफ्तान के थ्रू जाते हैं ईरान में ज़ियारत करने के लिए, तो ईरानी भी जो हैं वो भी इसी तरह फ्रूट्स के और फल फ्रूट के जो स्टॉल्स हैं लगा देते हैं और ज़ायरीन के लिए वो भी मुफ्त होता है। तो इसीलिए तो कहते हैं ना, वो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी, तो सारे मुसलमान जो है वो एक हो जाते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत का दर्स देते हैं, एक दूसरे की खिदमत का दर्स देते हैं। हम बात कर रहे थे अब्बासियों के दौर की, तो अब्बासियों के दौर में बगदाद इल्म और अदब का मरकज था। दुनिया भर के अहले इल्म दानिश्वर लोग यहाँ पर आते थे, इल्म की प्यास बुझाते थे। फिर 1258 में मंगोलों ने हलाकू खान की क़यादत में अब्बासियों का जो आखिरी जो खलीफा थे मुतसिम बिल्ला, उनको शिकस्त दी और बगदाद को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। जो मौरखीन हैं वो ये लिखते हैं कि इस मौके पर इस कदर वहशियाना कत्लेआम हुआ कि बगदाद की तकरीबन जो 20 लाख आबादी थी उसमें से 15 लाख के लगभग इस कत्लेआम की भेंट चढ़ गए थे। कुतुब खाने जला दिए गए थे, उलमा दानिश्वर जितने भी थे वो तहक़ीक़ कर दिए गए थे और इल्म और तहजीब के निशानात मिटा दिए गए थे। फिर 16वीं सदी ईस्वी में इराक उस्मानिया सल्तनत के ज़ेर हुकूमत चला गया। उसकी ये हैसियत जंग अज़ीम अव्वल तक कायम रही और उसके बाद फिर बरतानिया ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था और अंग्रेज़ों ने कोई 1932 में इस जगह को आज़ादी दी और हुकूमत जो है वो ये फिर चली गई अमीर फैसल को और तुर्कों के खिलाफ जंग लड़ने के मुआवजे के तौर पर ये जगह दे दी गई थी। फिर 14 जुलाई 1958 को इराकी ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल करीम कासिम जो थे, उन्होंने
इराक में फौजी इनकलाब बर्पा किया और बादशाहत ख़त्म कर दी और उन्होंने फिर इराक को जमहूरिया करार दे दिया। और फिर 1979 में सद्दाम हुसैन मुल्क के सदर बने और सद्दाम हुसैन ने 1980 में ईरान और 1990 में कुवैत पर हमला किया। बड़ी मशहूर जंगें हैं। अब इन जंगों का नुकसान ज़ाहिर है इराक को भी हुआ, बहुत नुकसान हुआ वहाँ होता है, कौमों को होता है, बिल्कुल। और फिर एक और बड़ी जंग वहाँ पर हुई जिसके बारे में आपने जिक्र भी किया कि 11 सितंबर 2001 के वाक़े के बाद अमेरिका ने इराक पर इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और उन्होंने हमला कर दिया। हमला हुआ ये 2003 में ये हमला हुआ था और इसको कि बरतानिया ने भी बड़ा सपोर्ट किया था। बरतानिया के जो वज़ीर आज़म थे टोनी ब्लेयर साहब, उन्होंने बड़ा, और ये वावेला मचाने के पीछे जो प्रॉपर ये जो प्रोपेगेंडिस्ट जिसको कहेंगे वो टोनी ब्लेयर ही थे। और बाद में उनके हवाले से जो एक खबर आई उसने तो हैरान कर दिया लोगों को, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई। क्योंकि वो प्रूव नहीं कर सके, हमला करने के बावजूद वो प्रूव नहीं कर सके, नहीं मिले, तो उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई थी एंड आई एम सॉरी। ये वर्ड्स थे। लाखों लोग मार दिए, आई एम सॉरी, नो प्रॉब्लम, होता है ये तो, मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है। सदर लटका दिया उसको, लोगों को मार दिया, लाखों लोगों को मार दिया, मुल्क तबाह कर दिया, और आपने सिर्फ एक वर्ड बोला, आई एम सॉरी। तो ये जो है मुसलमानों के हवाले से हमेशा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनको तकलीफ हमेशा ये रहती है और यही हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। जब भी मुसलमान किसी मुल्क में अगर कोई हमला करना चाहेगा तो उस पर यही इल्ज़ाम होगा कि भाई दहशतगर्दी फैला रहे हैं या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है या न्यूक्लियर डील जो है वो हमारे हिसाब से नहीं चलती। हालांकि आप खुद उस न्यूक्लियर डील से निकल जाते हैं, मतलब अपना डिसीजन लेके, बाकी किसी स्टेक होल्डर से पूछते नहीं है और आप आहिस्ता से विड्रॉ कर लेते हैं उस न्यूक्लियर डील से, जैसा कि ईरान के साथ हो रहा है। अपने फायदे के लिए सारी दुनिया को बर्बाद कर दो और उसके बाद कहो कि हम दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग हैं। एंड आई एम सॉरी, बिल्कुल। तो बहरहाल सद्दाम हुसैन को जैसे आपने जिक्र किया कि फांसी चढ़ा दी गई। सद्दाम हुसैन की जो फांसी थी उसके बाद पूरे मुल्क में जिस तरीके से फसादात हुए हैं, फिर वाराना फसाद भी हुए और उसके बाद जो इलाका जो था वहाँ का शुमाली इलाका वो फिर दाइश ने अपने कब्जे में ले लिया। पूरा ये इलाका खाना जंगी का एक्सपोज हो गया ना, वो एक्सपोज हो गया। वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, कोई स्टेट नहीं थी वहाँ।